قضائے حاجت کے آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہا نے کیا بیان کیا ہے؟ چنانچہ اگر قریب میں پردے کے ساتھ استنجے کا نظم و ضبط نہ ہو اور کسی کھلی جگہ میں استنجے کی نوبت پیش آ جائے، جیسے عام طور پر گاؤں دیہات وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، تو کہیں دور جا کر کے استنجا کرنا چاہیے، جس کو عام طور پر کہتے ہیں کہ میدان جانا۔ تو میدان جا کر کے جو ہے جنگل میں یا کسی کھیت یا دور دراز نچلی جگہ میں جا کر کے جو ہے استنجا وغیرہ سے فارغ ہونا چاہیے۔ چنانچہ نسائی کی روایت ہے، قال عبد الرحمن بن ابی قراد وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ ابعد۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے، کتاب الطہارہ باب الابعاد عند ارادۃ الحاجہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 حدیث نمبر 16۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب استنجے کا تقاضا ہوتا تو بقصد یعنی جان بوجھ کر آپ دوری کو اختیار فرماتے اور دور دراز جا کر کے جو ہے قضائے حاجت کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، کسی جگہ چھپ کر قضائے حاجت کرنا چاہیے، یعنی ایسی پست جگہ کو اختیار کیا جائے جہاں لوگ دیکھنے نہ پائے، تو کسی ایسی جگہ چھپ کر کے قضائے حاجت کرنا چاہیے۔ چنانچہ مسلم شریف میں روایت ہے، قال عبداللہ بن جعفر کان احب مستتر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجتی حدف او حائش نخل۔ یہ مسلم شریف کتاب الحیض باب التستر عند البول، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155 حدیث نمبر 342 ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضائے حاجت کے لیے جن چیزوں سے پردہ کرتے تھے ان میں سب سے پسندیدہ چیز ریت کا تودا یا کھجور کے جھنڈ تھے، یعنی اس زمانے میں جو کھجور کے درخت قریب قریب ہوتے تھے یا ایسی پست جگہ کو اختیار کرتے تھے جہاں لوگ دیکھنے نہ پائے۔ نمبر 3، مناسب جگہ میں قضائے حاجت کرنا چاہیے، ایسی جگہ جہاں قضائے حاجت کرنے سے کسی کو کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہو اور وہ مناسب اور موزوں جگہ ہو، تو ایسی جگہ کو قضائے حاجت کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ یہ اس صورت میں ہے جب یہ گھروں کے اندر، جیسے جنگلات وغیرہ کے اندر، دیہات میں وغیرہ ہوتا ہے اس میں، اور بڑے بڑے شہروں میں عام طور پر گھروں کے اندر بنے ہوئے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر۔ چنانچہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم ان یبول فلیرتد لبولی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب الطہارہ باب الرجل یتبوء لبولہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 حدیث نمبر 3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے نرم جگہ کو وہ تلاش کرے۔ نہیں، یہ تو چوتھے نمبر کا تھا، یعنی سخت زمین پر پیشاب کرنے کی نوبت آئے تو کھود کر نرم کر لینا چاہیے، جو میں ابھی پھر سے بتلاتا ہوں۔ یہ نمبر 3، مناسب جگہ میں قضائے حاجت کرنا چاہیے۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت اس طریقے سے ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم ان یبول فلیرتد لبولی، جو میں نے پہلے پڑھی تھی کہ آپ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب الطہارہ باب الرجل یتبوء لبولہ، اس کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے، یعنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 حدیث نمبر 3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے نرم جگہ کو تلاش کرے۔ یہ نرم جگہ کو قضائے حاجت کے لیے جائے تو اس کے لیے نرم جگہ کو تلاش کرے۔ چوتھے یہ کہ سخت زمین پر پیشاب کرنے کی نوبت آئے تو اول اس کو کھود کر کے نرم کر لینا چاہیے، اور یہ بھی اسی حدیث کے اندر اور فتاوی عالمگیریہ سے ہی یہ بات واضح ہوتی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم ان یبول فلیرتد لبولہ، جو میں نے ابھی عبارت پڑھی تھی وہی عبارت یہاں پر بھی ہے۔ فتاوی عالمگیریہ میں ہے، فَإِذَا أَرَادَ أَن يَبُولَ وَكَانَتِ الْأَرْضُ صُلْبَةٌ رُمْحُهَا بِحَجَرٍ أو حفر أو حفیرہ حتی لا يترش علیہ البول۔ یہ فتاوی عالمگیریہ کی عبارت ہے، پہلے جس صفحہ 50 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ نمبر 5،
ममनू जगह मसलन रास्ते में या सायादार जगहों में जहाँ पर क्या नाम है कोई पेड़ पौधा हो गांव देहात में और लोग आकर के वहाँ पर उठते बैठते हों, तो ये सायादार दरख्त है, जैसे आम का दरख्त है, बरगद का दरख्त है, पीपल का दरख्त है, नीम का दरख्त है, या और भी कोई ऐसे है जहाँ लोग आकर के बैठते उठते हैं। इसी तरीके से मस्जिद के दर दीवार पर या कीड़े मकोड़े के सुराख वगैरह में क़ज़ाए हाजत करने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि नहीं करना चाहिए। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इत्तकुल मुलाइना अस्सलास अल बराज़ फिल मवारिद वक़ारातुत तरीक़ व ज़िल्लु क्या नाम है वज़िल्लु। ये अबू दाऊद शरीफ की रवायत है, किताब तहारा बाबुल मवाज़ि अल्लती नही अनिल बौल फ़ीहा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 5 हदीस नंबर 26 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लानत की चीज़ों यानी गुज़रगाह में, आम रास्ते में और साए में क़ज़ाए हाजत यानी पाखाना पेशाब करने से बचो। इसलिए इन मौक़े पर पेशाब पाखाना करने से हत्तल इम्कान गुरेज करना चाहिए इंसान को। नंबर 6, गुस्ल खाने में पेशाब नहीं करना चाहिए। ये पहले ज़माने में चूँकि कच्चे गुस्ल खाने हुआ करते थे, मिट्टी के होते थे, तो ज़मीन जज्ब कर लेती थी पानी को, तो वहाँ गुस्ल करने से पेशाब करने से फिर जब नहाएंगे तो वही पानी जज्ब होगा, इसलिए मना किया गया था। लेकिन अब का जो मौजूदा दौर का टॉयलेट वगैरह या क्या नाम है गुस्ल खाना वगैरह है, ये इस तरीके से है कि लादी लगी हुई है, टाइल्स वगैरह लगी हुई। तो अब यहाँ अगर पेशाब किसी वजह से किया, अव्वलन तो करना यहाँ भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से कर लिया है तो फिर पानी मार देने से बह जाता है, तो यहाँ पर कोई हरज नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियात इसमें भी करना चाहिए कि इस तरीके से पेशाब वगैरह करने से आम तौर पर जो अतिब्बा होते हैं, हुक्मा होते हैं, वो कहते हैं कि निसियान की बीमारी पैदा होती है, इसलिए इससे गुरेज करना चाहिए। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इब्न माजा में रिवायत है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबूलन्ना अहदुकुम फ़ी मुस्तहम्मा फ़इन्ना आमतुल वसवासी मिन्हु। ये इस तरीके से जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये सुनन इब्न माजा अबवाबुत तहारा व सुननुहा बाबु कराहतिल बौल फ़िल मुग़तसिल सफ़ा 46 हदीस नंबर 304 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई गुस्ल खाने में पेशाब ना करे, इसलिए कि ज़्यादातर वसाविस इसी से पैदा होते हैं, इसलिए हमें भी हत्तल इम्कान गुस्ल खाने वगैरह में पेशाब करने से बचना चाहिए। नंबर 7, वज़ू की जगह पर पेशाब नहीं करना चाहिए। जिस जगह वज़ू किया जाता है उस जगह पेशाब वगैरह करने से परहेज़ करना चाहिए। चुनांचे फतावा आलमगीरिया में है, वयकरहु अन यबूल फ़ी मौज़ि यतवज़्ज़अ फ़ीहि औ यग़तसिल। ये फतावा आलमगीरिया की इबारत है, पहली जिल्द सफ़ा 50 पर इसको नकल किया गया है। नंबर 8, दीनी तहरीरात को लेकर बैतुल खला नहीं जाना चाहिए। दीनी तहरीरात जो कुछ दीन से वाबस्ता इस्लाम से मुतालिक चीज़ें लिखी हुई है, जैसे आयात है कुरान करीम की या अहादीस है या कोई सुन्नत या मुस्तहब्बात या फ़िक़ह की किताबों की कोई बातें लिखी हुई है, तो ऐसी चीज़ों को बैतुल खला में लेकर के जाना नहीं चाहिए। चुनांचे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत अबू दाऊद के अंदर क़ाल अनस कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अल खला वज़अ ख़ातमहु। ये अबू दाऊद की रवायत है जो किताब तहारा बाबुल ख़ातम यकून फ़ीहि ज़िक्रुल्लाह, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 4 हदीस नंबर 19 है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला जाते तो अपनी अंगूठी उतार देते थे, उस पर लिखा हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर अल्लाह रसूल मोहम्मद या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस तरीके के अल्फाज जो है लिखे हुए थे, जिसको मैंने शमाइल तिरमिज़ी के शरह सिराज नबी के अंदर काफ़ी तफसीली बहस जो है बाबुल ख़ातम के तहत की है। आप वहाँ मेरी किताब सिराज नबी में देख सकते हैं। बज़ुल मजूद के अंदर है, वयदखुलु फ़ीहि कुल्लु मा कान फ़ी इस्मिल्लाहि तआला मिनल क़िरतास व दराहिम इज़ा कान फ़ी इस्मिल्लाहि तआला बल इज़ा कान मनकूशन फ़ीहिल हुरूफ। इस तरीके फ़यंबग़ी लिमन दख़ल खला यमनहु क़ब्ल दुख़ूलिल खला। ये बज़ुल मजूद की इबारत है, पहली जिल्द सफ़ा 229 पर इसको नकल किया गया है। इसी तरीके से नंबर 9, सर ढाँप करके बैतुल खला क़ज़ाए हाजत के लिए जाना चाहिए। सर को ढक करके फिर जाना चाहिए। चुनांचे
सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी के अंदर है क़ाल हबीब बिन सालिह कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा दखल अल खला लबिसा हिज़ाउ वग़त्ता रअसहु। ये सुनन कुबरा लिल बैहक़ी की रिवायत है। किताब जिमाई अबवाबिल इस्तिताबा बाब तग़तियत रास इंद दुखूल खला, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 155 हदीस नंबर 456। हज़रत हबीब बिन सालिह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला जाते तो अपने जूते पहन लेते और अपना सर ढांप लेते थे, और फिर इस हालत में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। नंबर 10, जूते चप्पल पहन करके बैतुल खला के अंदर जाना चाहिए। चुनांचे ये भी रिवायत यही है। क़ाल हबीब बिन सालिह कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा दखल खला लबिसा हिज़ा वग़त्ता रअसहु। ये सुनन कुबरा जो मैंने अभी हवाला दिया उसी के अंदर दूसरा जुमला है, यानी सुनन कुबरा लिल बैहक़ी किताब जमाई अबवाबिल इस्तिताबा बाब तग़तियत रास इंद दुखूलिल खला, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 155 हदीस नंबर 456 है। हज़रत हबीब बिन सालिह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला जाते तो अपने जूते पहन लेते और सर ढांप लिया करते। नंबर 11, बाएं पैर से दाखिल होना, यानी उल्टे पैर से बैतुल खला के अंदर, चाहे जिस जगह क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहा है उस जगह उल्टे पैर से दाखिल होना। ये बहस जो है फतावा हदीसिया की सफ़ा 61 पर इसको नकल किया गया है। नंबर 12, बैतुल खला में दाखिल होने से पहले ये दुआ को पढ़ लेना चाहिए। जो ही जब एंट्री करते हैं तो एंट्री करने से पहले, दाखिल होने से पहले इस दुआ को पढ़ लेना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये जो है ये दुआ के पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। चुनांचे बुखारी के अंदर है क़ाल अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा दखल अल खला क़ाल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। बुखारी की रिवायत है किताबुल वुज़ू बाब मा यक़ूलु इंदल खला, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 26 हदीस नंबर 142 है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ऐ अल्लाह मैं शयातीन मर्दूद और शयातीन मर्दों और शयातीन औरतों से तेरी पनाह चाहता हूँ। तो हमें भी इस दुआ के पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए बैतुल खला में एंट्री करने से पहले। नंबर 13, क़ज़ाए हाजत के वक्त क़िबले की तरफ मुंह और पीठ को नहीं करना चाहिए। चुनांचे इस सिलसिले में साफ तौर पर बुखारी की रवायत है क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा उतिया अहदुकुमुल गाइत फ़ला यस्तक़बिलुल क़िबला वला युवल्लुहा ज़हरुहा, या हाँ ये रिवायत जो है बुखारी की है किताबुल वज़ू बाब ला तस्तक़बिलुल क़िबला बिग़ाइत औ बौलिन इल्ला इंदल बिनाई जिदारिन और नहविन। इस तरीके की इबारत जो है बुखारी पहली जो सफ़ा 46 हदीस नंबर 144 पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत करे तो क़िबले की तरफ ना रुख करे और ना उसकी तरफ पीठ फेरे, यानी उसकी तरफ यानी क़िबले की तरफ ना ही पीठ करना चाहिए और ना ही जो है मुँह करना चाहिए। इससे जो है जैसे मसलन हम सामने किबला है तो इस तरीके से बैठे, इस तरीके से ताकि जो है हमारा मुंह भी किबले की तरफ ना हो और पीठ भी हमारी ना हो, ये पीठ जो है ये साइड हो जाए और मुंह जो है ये साइड हो जाए। नंबर 14, खड़े खड़े पेशाब इंसान को नहीं करना चाहिए। खड़े खड़े पेशाब करने की ममानियत हदीस में है। चुनांचे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रवायत है क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु ताला मन हद्दसकुम अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यबूलु क़ाइमन फला तुसद्दिक़ू मा कान यबूलु इल्ला क़ाइदन। ये तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है बाबु तहरा बाबुन नही अनिल बौलि क़ाइमन, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 9 हदीस नंबर 12 है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो शख्स तुम्हारे सामने ये बयान करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े खड़े पेशाब करते थे तो उसकी तस्दीक मत किया करो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर ही पेशाब करते थे और आपका यही मामूल था पेशाब करने का बैठ करके। नंबर 15, बवक्त ज़रूरत और बक़द्र ज़रूरत सतर को खोलना। जिस वक्त हमको क़ज़ाए हाजत के लिए जिस कदर ज़रूरत है सतर को खोलने की, जिस्म को खोलने की, उसी कदर खोलना चाहिए और खोलने में भी जिस कदर हम नीचे बैठते जाए उस कदर जो है नीचे के हिस्से को उठाते हुए चले जाए। ये सतर औरत में बेहतरीन तरीक़ा है। चुनांचे
अबू दाऊद की रवायत है, क़ाल इब्न उमर अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा अरादल हाजा ला यरफ़उ सौबहु हत्ता यदनु मिनल अर्द। ये क्या नाम है, अबू दाऊद की रवायत है, किताब तहरा, बाबू कैफ तकश्शुफ इंदल हाजा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 3 हदीस नंबर 14 है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत का इरादा फरमाते तो अपना लिबास ज़मीन से करीब होने तक नहीं उठाते थे। तो इसमें तसत्तुर ये बहुत ज़्यादा पसंदीदा है इस्लाम में, इसलिए पसंदीदा अमल पर पसंदीदा चीज़ों पर अमल करना चाहिए। नंबर 16, बाएं पैर पर जोर दे करके बैठना। बाएं पैर जो उल्टा पैर जिसको हम कहते हैं, तो उल्टे पैर पर जोर दे करके बैठना चाहिए, ये बेहतर अमल है। चुनांचे फतवा आलमगीरिया में यमील अलल युसरा, ये फतवा आलमगीरिया के बारे में पहली जिल्द सफ़ा 50 पर इसको नकल किया गया है। नंबर 17, दोनों रानों को खूब कुशादा करके क़ज़ाए हाजत के लिए बैठना चाहिए। चुनांचे फतवा आलमगीरिया में है, वही वस्सउ बैन रिजलैहि, ये फतवा आलमगीरिया की इबारत है, पहले जिस सफ़ा 50 पर इसको नकल किया है। नंबर 18, पेशाब पखाने की तरफ नहीं देखना चाहिए। कोई मर्ज़ है और मर्ज़ के तहत डॉक्टर ने कोई तशख़ीस की है कि इसको देखो कैसा है क्या है, तो हुक्म अलग है, लेकिन आम हालात में इसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। पेशाब पाखाने जो गंदगी है उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, इससे आमतौर पर वसवसा और क्या नाम है भूलने की बीमारी जो है पैदा होती है, इसलिए इससे एहतराज़ करना चाहिए। पेशाब पाखाने की तरफ हत्तल इम्कान नहीं देखना चाहिए, इससे गुरेज करना चाहिए। चुनांचे फतवा आलमगीरिया में है, वला यंजुरु इला मा यखरुजु मिन्हु, ये फतवा आलमगीरिया की इबारत है, पहली जिल्द सफ़ा 50 पर इसको नकल किया गया है। नंबर 19, बिला ज़रूरत बैठे बैतुल खला में नहीं रहना चाहिए। चुनांचे इस सिलसिले में जो आलमगीरिया में है, वला यतीलुल क़ूद अलल बौली वल गाइद, ये फतवा आलमगीरिया की इबारत है, पहली जिल्द सफ़ा 50 पर इसको नकल किया गया है। इसी तरीके से नंबर क्या नाम है, नंबर 20, बैतुल खला में ज़ुबान से अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ज़िक्र व अज़कार नहीं करना चाहिए। चुनांचे इस सिलसिले में इब्न माजा में है, क़द अलक़ा रजुलन बिस्सलाम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यबूल फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा वजदतनी अला मिस्लि हाज़ल हाल फ़ला तुसल्लिम अलैया। ये इब्न माजा की रिवायत है, अबवाब तहारा व सुननुहा बाबुर रजुल युसल्लिमु अलैहि व हुवा यबूल, सफ़ा नंबर 29 हदीस नंबर 352 है। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त क़ज़ाए हाजत कर रहे थे, पेशाब वगैरह फरमा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस आने वाले नवारिद शख्स ने जो है सलाम किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया, जब तू मुझे इस हालत में देखे तो सलाम ना किया कर, यानी कि जब मैं क़ज़ाए हाजत के लिए हूँ तो उस वक्त ऐसे मौके पर सलाम नहीं करना चाहिए। नंबर 21, किसी से बातचीत नहीं करना चाहिए। बैतुल खला में बातचीत करने की ममानियत है। चुनांचे अबू दाऊद के अंदर है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतनाजा इस्नानि अला गाइदिहिमा यंजुरु कुल्लु वाहिद मिनहुमा इला औरा साहिबहु फइन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल यमकुतु अला दालिक। ये इब्न माजा की रिवायत है, अबवाब तहारा व सुननहा बाबुन नही अनिल इज्तिमाई अलल खला वल हदीस इंदहु, सफ़ा 29 है, हदीस नंबर 300 क्या नाम है 42 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो शख्स क़ज़ाए हाजत करते हुए आपस में बातें ना करें कि हर एक दूसरे के सतर को देख भी रहा हो, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस तरह की हरकत से नाराज़ होते हैं, यानी अल्लाह को ये अमल पसंदीदा नहीं है, इसलिए बातचीत नहीं करना चाहिए बैतुल खला वगैरह के अंदर। नंबर 22, अगर छींक आए तो दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, ज़ुबान से नहीं। जैसे आम हालात में छींक आते तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आम हालात में के एतबार से नहीं कहना चाहिए, बल्कि उस वक्त कहना चाहिए दिल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, दिल ही दिल के अंदर, ज़ुबान को हरकत नहीं देना चाहिए। चुनांचे फतवा आलमगीरिया में है, फ़इन अतस यहमदुल्लाह बिक़ल्बिही वला युहर्रिक लिसानक, ये फतवा आलमगीरिया की इबारत है, पहली जिल्द सफ़ा 50 पर इसको नकल किया गया है। इसी तरीके से नंबर 23, दाहिने हाथ से शर्मगाह को ना छूना, सीधे हाथ से जिसको हम कहते हैं, पेशाब करना हो या पखाना करना हो तो सीधे हाथ से। अब किसी की मजबूरी है, उसके पास हाथ ही नहीं है, उल्टा हाथ, तो क्या करे, तो वो हुक्म यहाँ पे नहीं बयान किया जाता।
आम हालात के एतबार से जो खेलते रहते हैं पेशाब पखाने के रास्ते से या उसको हाथ लगाते हैं बार बार, तो सीधे हाथ को लगाने, दाहिने हाथ को लगाने को मना किया गया। दाहिने हाथ से शर्मगाह को नहीं छूना चाहिए। चुनांचे बुखारी के अंदर रिवायत इस तरीके से क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा बाला अहदुकुम फला यअख़ुज़ ज़करहु बियमीनिही ला यअख़ुज़न्ना ज़करहु बियमीनिही। ये बुखारी की रिवायत है, किताबुल वज़ू बाबु ला युमस्सिकु ज़करहु बियमीनिही इज़ा बाला, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 27, हदीस नंबर 154 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई पेशाब करे तो दाहिने हाथ से शर्मगाह को ना छुए, इसलिए जो है इससे परहेज करना चाहिए। नंबर 24, दाहिने हाथ से इस्तिंजा नहीं करना चाहिए। दाहिने हाथ से, सीधे हाथ से जिसको राइट साइड कहते हैं, तो इस हाथ से अब किसी की मजबूरी है तो उसका हुक्म अलग है कि उसके पास हाथ ही नहीं तो करेगा क्या, तो उस हुक्म दूसरा है। उस वक्त के हुक्म को यहाँ नहीं बयान किया, बल्कि आम हालात में जो दोनों हाथ इंसान के पास मौजूद, अल्लाह की कुदरत मौजूद है उसके पास, अल्लाह ने उसको ये नियामत दे रखी है, तो दाहिने हाथ से इस्तिंजा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए उल्टे हाथ का इस्तेमाल करे, बाएं लेफ्ट साइड का जो है इसको इस्तेमाल करना चाहिए। चुनांचे इस सिलसिले में जो है बुखारी की रवायत है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला यस्तंजी बियमीनिही। ये बुखारी की रवायत है, किताबुल वही बाबु ला युमसिकु ज़करहु बियमीनिही इज़ा बाला, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 27, हदीस नंबर 154 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और दाहिने हाथ से इस्तिंजा ना करे। नंबर 25, इस्तिबरा करना, यानी पेशाब के कतरे निकलने से इत्मीनान को हासिल कर लेना। आज के दौर में इसको अगर देखना है तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल अगर इंसान करे कि खूब अच्छी तरीके से पेशाब के बसा औकात लोगों को कतरात आते रहते, तो टिश्यू पेपर को पेशाब के नोक पर लगा करके, उज़्व तनासुल के सिरे पर लगा करके और फिर जो है उसको थोड़ी देर रखा जाए, तो अंदर का जो पेशाब नाली का है वो टिश्यू पेपर चूस लेगा। तो इस्तिबरा इसी को कहते हैं, इससे ज़्यादा जो है पाकी हासिल होती है। चुनांचे ये बहस जो है नूरुल इज़ाह की सफ़ा 138 जो मतबुआ कुनूज़ुल इल्म ढाबेल गुजरात का छपा हुआ नुस्खा है, उसके अंदर ये बहस लिखी हुई है। नंबर 26, ढेले और पानी दोनों को इस्तेमाल करना, दोनों को जमा कर लेना, ये भी जायज़ और दुरुस्त है। ढेले की जगह आज अगर कोई आदमी टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करता है तो भी टिश्यू पेपर का इस्तेमाल ढेले के कायम मकाम हो जाएगा। चुनांचे इस सिलसिले में जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया गया है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी क़ौलिही तआला फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। ये सूरह तौबा की आयत है, पारा नंबर 11 आयत नंबर 108। नज़लत हाज़िल आया फ़ी अहल क़ुबा कानू यस्तंजून बिलमाई फ़नज़लत फ़ीही हाज़िल आया। ये अबू दाऊद की रवायत है, किताबुत तहरा बाबुल इस्तिंजाई बिलमा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 7, हदीस नंबर 44 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फरमान फ़ीहि रिजाल युहिब्बूना, इसके मुतालिक के ये आयत अहले क़ुबा के मुतालिक नाजिल हुई। ये लोग ढेले के बाद पानी से भी इस्तिंजा, पहले ढेला को इस्तेमाल करते थे, उसके बाद जो है फिर टिश्यू पेपर जिसको हम कहते हैं उसको इस्तेमाल करते आज के दौर में कह लीजिए, फिर उसके बाद जो है पानी से इस्तिंजा किया करते थे, पानी से साफ करते थे। लिहाजा उनके बारे में आयत नाजिल हुई। आज का तर्जमा है कि इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक साफ होने को पसंद करते हैं और अल्लाह पाक साफ लोगों को पसंद करता है, इसलिए अगर कोई आदमी दोनों को जमा कर ले तो ये नूरुन अला नूर सबसे बेहतर अमल हो जाएगा। नंबर 27, ढेलों से इस्तिंजा करने की सूरत में ताक अदद की रियायत करना। इसकी जगह अगर टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं तो टिश्यू पेपर का भी यही हुक्म है कि आप जो है उसको ताक अदद 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 अदद, इस तरीके से इसको ताक कहते हैं, यानी जुफ्त बराबर वाला नहीं होना चाहिए, 1 हो या 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इसको ताक कहते हैं। ताक अदद की रियायत करना चाहिए। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बुखारी के अंदर, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इस्तजमर फलयूतिर, ये बुखारी की रिवायत है, किताबुल वज़ू बाबुल इस्तिजमारी वितरण, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 28, हदीस नंबर 162। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ढेले से इस्तिंजा करे तो वो ताक अदद ले। नंबर 28,
ममनुआ चीज़ों मसलन हड्डी, लीद वगैरह से इस्तिंजा नहीं करना चाहिए, जैसे गोबर है, कोयला वगैरह है, इन चीज़ों से इस्तिंजा नहीं करना चाहिए। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तस्तंजु बिर्रौस वला बिलइसाम। ये तिरमिज़ी की रिवायत है, बाबु तहरा बाबु कराहत मा यस्तंजी बिही, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 11 हदीस नंबर 18 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लीद और हड्डी से इस्तिंजा मत करो, इसलिए हमको भी इससे एहतियाज करना चाहिए। नंबर 29 क़ज़ाए हाजत का नंबर 29 आदाब के। पहले दायाना पैर बाहर निकालना। जब बैतुल खला से हम फारिग हो गए तो फारिग होने के बाद हमको जो है पहले दाहिना पैर, सीधा पैर जिसको हम कहते हैं, सीधे पैर को बाहर निकालना चाहिए। चुनांचे फतावा आलमगीरिया में है, वयस्तहिब्बु लहु इंदल खुरूज बिक़दमिल युमना। फतावा आलमगीरिया के इबारत है, पहले जिस सफ़ा 50 पर इसको नकल किया है। नंबर 30 बैतुल खला से बाहर निकल करके, जब हम दोनों कदम बैतुल खला से बाहर निकाल करके बाहर चले आते हैं, या मैदान गए हैं, जंगल में गए हैं, तो वहाँ से फारिग होकर के उस जगह को छोड़ करके बाहर आ जाते हैं, तो उस वक्त ये दुआ करना चाहिए, दुआ पढ़ना चाहिए, गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। इस दुआ के पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। चुनांचे अबू दाऊद के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हज़रत आयशा नकल करती कहती है, क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा ख़रज मिनल ग़ाइद क़ाला गुफ़रानका। ये अबू दाऊद की रवायत है, किताबुत तहारा बाबु मा यक़ूलु रजुल इज़ा ख़रज मिनल ख़ला, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 5 हदीस नंबर 30 है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला से बाहर निकलते तो दुआ पढ़ते गुफ़रानका। फिर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, क़ाल अनस काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ख़रज मिनल ख़ला क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ये अबू दाऊद इब्न माजा की रिवायत है, अबवाबुत तहारा व सुननुहा बाबु मा यक़ूलु इज़ा ख़रज मिनल ख़ला, सफ़ा नंबर 26 हदीस नंबर 300 है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला से बाहर तशरीफ़ लाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। जो दुआ है यानी जिसका तर्जमा है, तमाम तारीफ़ है उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझसे तकलीफ़ दह चीज़ को दूर कर दिया और मुझे आफ़ियत बख्शी। इस दुआ के पढ़ने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम किया करते थे। क़ज़ाए हाजत को नंबर 31 क़ज़ाए हाजत को अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फ़ज़ल व इहसान समझना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा अभी, गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, इससे ही ये बात भी मुतरश्शि होती है। नंबर 32 क़ज़ाए हाजत के बाद मज़ीद सुथराई के लिए, सफाई के लिए, हाथ की साफ़ सफाई के लिए साबुन वग़ैरह या शैम्पू वग़ैरह से हाथ को धो लेना चाहिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाकीज़गी को बयान किया गया है। चनाचे अबू दाऊद की रवायत है, क़ाल अबू हुरैरा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा उतियल खला अतैतु बिमाइन फ़ी तौरिन औ रकवा फस्तंजा थुम्मा मसह यदहु अलल अर्द। अबू दाऊद की रवायत है, किताबुत तहारा बाबु रजुल यदुल्लुका यदहु बिल अर्द इज़ा इस्तंजा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 7 हदीस नंबर 45 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिंजा का तकाज़ा होता तो मैं मिट्टी या चमड़े के छोटे बर्तन में पानी लेकर आता। कौन कहते हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा फरमाते, फिर ज़मीन पर अपना हाथ रगड़ते, दलक जिसको कहते हैं, सफाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर इस तरीके से रगड़ते। आज के दौर में साबुन है तो साबुन को ले करके रगड़ लीजिए, या दोनों हाथ में इस तरीके से लगा करके फिर जो है आप साफ़ कर लीजिए। ये बेहतर और अफजल अमल है इस सिलसिले में। चुनांचे 32 आदाब जो है क़ज़ाए हाजत से मुताल्लिक़ उलमा और मुहद्दिसीन ने बयान किया है, जिसकी तफसील अगर देखनी है तो सुनन व आदाब के अंदर सुनन व आदाब मामूलात यौमिया क़ज़ाए हाजत के आदाब के उन्वान से जो है इसको नकल किया है। सुनन व आदाब के सफ़ा 43 और सफ़ा 44, सफ़ा 45, सफ़ा 46 और सफ़ा 47 तक जो है, सफ़ा 47 और सफ़ा 48 तक इसको बयान किया है। वहाँ ये पूरी तफसील जो है ये 7-8 सफ़े में बयान की गई है। आप पूरी तफसील इसकी वहाँ सुनन व आदाब नामी किताब के अंदर देख सकते हैं।